The title of this is Pastor John Vignes from Apple Valley, Minnesota. And I'm going to be giving the message in English. And with me is Pastor Persis Hannah from India, and she will be translating into Hindi. और सभी को जय मसीह की आज की शाम मैं पास्टर जॉन विग्नेस एप्पल वैली मिनेसोटा से और मुझे ट्रांसलेट करेंगे पास्टर पर्सिस इंडिया से. The title of the message is The Cross and Naaman. The Cross and Naaman. और आज का जो वचन का शीर्षक हम लेकर आते हैं वो है क्रूस और नामान. ये दोनों कैसे हम इन दोनों को देख सकते हैं, तो इसके बारे में है क्रूस और नामान. These scriptures come from 2 Kings chapter 5 verses 1 through 19. I'm not going to read all the scripture. I'll break the scripture down as I go through the message. और आज का जो वचन है आइए हम देखेंगे दूसरा राजा और उसका 5वां अध्याय के पहले आयत से लेके 19 तक हम देखेंगे. हम सभी को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैसेज के दौरान, इस वचन के दौरान हम एक एक वचन को हम देखेंगे. Naaman was a mighty military man. In 2 Kings chapter 5 and verse 1 it says, "Now Naaman, captain of the hosts of the king of Syria, was a great man with his master and honorable, because by him the Lord had given deliverance unto Syria. He was also a mighty man of valor, but he was a leper." Naaman was the top military commander of Syria, the most powerful nation in the world at the time. At his word, the mighty army of Syria advanced. At his word, his army retreated. He was an honorable man. He was a man of valor. Naaman was loved by the king of Syria. His nation loved him, but he was a leper. और आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो एक नामान नाम का एक व्यक्ति है. और जब हम नामान के बारे में जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर वचन में देखते हैं, तो वचन बताते हैं कि नामान एक सेनापति था जो स्वामी की दृष्टि में या राजा की दृष्टि में बहुत ही बड़ा और प्रतिष्ठित था. आइए हम देखते हैं, इसका पहला वचन में इस प्रकार से लिखा है, अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजय किया था. वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था. तो जो नामान था वो एक ऊंचे पद पर था. उस समय का जो सबसे मजबूत एक जो राज्य था वो आराम था उस टाइम पे. और उधर का जो वहां का सेनापति था वो उस एक पद पे था जिसका नाम था नामान, और वो बहुत ही प्रतिष्ठित था, बहुत ही शूरवीर था. और उसको जो है आराम का राजा बड़ा प्रेम करता था, बहुत प्यार करता था, लेकिन वो एक कोढ़ी था. There was no cure for leprosy. Even the most powerful people in the world are at sometimes powerless. There are some things money can't buy. There are some things that earthly power cannot obtain. Naaman was one of the most powerful men in the world at the time. He had access to the king of Syria. He could have almost anything he wanted, but Naaman could not cure himself. और जो कोढ़ था उसका कोई इलाज नहीं था. और कई बार क्या होता है कि जो सबसे मजबूत लोग होते हैं, ताकतवर लोग होते हैं संसार में, वो कई बार उस ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाते. कई बार जो हम पैसों से खरीदना चाहते हैं वो नहीं खरीद पाते. कई बार जो हमें इस पृथ्वी पर जो हमारे पास हमें शक्तियां हैं, हमें अधिकार हैं, उनसे हम नहीं उन चीजों को पा सकते. तो नामान एक व्यक्ति था जिसके पास अधिकार था, ताकतवर था उस समय में. उसके पास एक तरीका, एक उसको जिम्मेदारी था राजा के पास. वो कभी भी जा सकता था, वो कुछ भी ले सकता था. लेकिन इतना सब होने के बावजूद नामान अपने आप को ठीक नहीं कर पाया. Wealth, power, and influence can only take you so far. Naaman could defeat any enemy in battle, but he was powerless against leprosy. He could not cure leprosy. Every person in the world, every person that has ever been born will at time be powerless against the circumstances in their life. We all need Jesus. Naaman was a leper. It does not say what stage of leprosy Naaman was in. It must have been in the earlier stages of the disease, because Naaman could travel
But leprosy is a terrible disease. Eventually, it spreads over the entire body. In the last stages of the disease, leprosy eats off the fingers and toes, or even the nose and lips. Most lepers are filled with an unbearable odor because of the flesh that is dying, rotting, or being eaten away. This is the disease that Naaman had. He was powerless. There was no human cure. तो हम यहाँ पर देखते कि नामान की बीमारी के बारे में, जो कई बार क्या होता है कि जो हमारे पास पदवी है, जो ताकत है, जो पैसा है, वो हमें बहुत कुछ तो दे सकता है, लेकिन हम देखते हैं नामान जो एक सेनापति था, वो एक लड़ाई में किसी भी शत्रु को हरा सकता था, लेकिन एक शत्रु, एक जो चीज, एक जो बीमारी, एक जो कोड उसके अंदर था, उसके लिए वो कुछ नहीं कर पाया। वो अपनी कोड के लिए कोई भी इलाज नहीं कर पाया। तो हर व्यक्ति जो इस संसार में है, जो इस संसार में जन्म लिया है, एक ऐसा समय आता है जब उसका जो ताकत है, या ऐसा कुछ परिस्थिति आता है जब उसका ताकत, उसका पदवी, उसका शक्ति सब खत्म हो जाता है और हमें वहां पर यीशु मसीह का जरूरत होता है। तो नामान एक कोढ़ी था, और उसका जो किस स्तर पे वो कोढ़ी था ये नहीं बताया, लेकिन हो सकता है वो एक शुरुआती दौर पर उसका कोढ़ अभी शुरू हुआ हो या शुरुआती दौर में हो, क्योंकि हम यहाँ पढ़ सकते हैं नामान उन दिनों में बाहर जाता था, लड़ाइयों पे जाता था, जबकि कोढ़ एक भयंकर बीमारी है और वो पूरे शरीर में फैल जाती है, और उसके आखिरी स्तर तक आते आते कई बार जो त्वचा होते हैं वो उंगलियों को और जो पैरों की उंगलियां उन सबको खा जाते हैं। अब आंखों में, नाकों में, होंठ में, सब जगह वो फैल जाता है, और कई बार एक बड़ी दुर्गंध आने लगती है, क्योंकि जो त्वचा होती है वो अंदर ही अंदर त्वचा को, शरीर के हिस्सों को खाने लगती है। तो ये ऐसी एक बीमारी नामान को थी। तो वो दुनिया के लिए तो वो ताकतवर था, लेकिन इस बीमारी के आगे उसका कोई बस नहीं चलता, उसका कोई इलाज नहीं था। Naaman had a deeper, more serious problem than leprosy, sin. In the Old Testament, leprosy was looked at as a curse from God because of sin. Actually, the physical look of leprosy, the missing body parts, the missing fingers and toes, the missing nose and lips, the horrible smell of rotting flesh being eaten away, is a picture of what your spirit looks like because of sin. This is what your spirit looks like if you're not saved. और नामान को जो है एक समस्या थी कोढ़ की, लेकिन उससे भी भयंकर एक समस्या थी पाप, क्योंकि पुराने नियम में जब हम देखते हैं तो पुराने नियम में कोढ़ को परमेश्वर ने एक श्राप के रूप में, जो पाप के बदले में श्राप के रूप में कोढ़ एक बीमारी को दिया था। तो जब हम देखते हैं एक कोढ़ का बीमारी, तो उसमें हमें क्या दिखता है कि उसके जो शरीर के जो अंग हैं वो खराब हो रहे हैं, गल रहे हैं, त्वचा उस शरीर के अंग को खा रही है, गंदी बदबू आ रही है। तो यही एक आत्मिक दृश्य है जब हम पाप करते हैं, और इसी तरह के हम दिखने लगते हैं जब हम बचाए नहीं गए होते और जब हम पाप में होते हैं। In 2 Kings chapter 5 and verse 1, it says, because by him the Lord had give deliverance to Syria. Naaman was a heathen. Naaman was unsaved. He did not know it, but it was the Lord that allowed him to win his battles. The Lord used Naaman, even though he was unsaved, to deliver Syria. The Lord used Naaman to win the battles, but Naaman did not know the Lord. Naaman was unsaved. और हम जब पढ़ेंगे दूसरा राजा 5वां अध्याय का पहला वचन, इसमें एक बात को बहुत ही बारीकी से लिखा है कि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था, जबकि जो नामान है वो बचाया गया नहीं था, उसको मालूम नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया और उसको विजय दिलाया। परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया ताकि वो आराम एक राज्य जो था उसको विजय दिलाए। तो परमेश्वर ने नामान को इस्तेमाल किया, जबकि वो बचाया हुआ नहीं था, वो परमेश्वर को जानता नहीं था। Naaman had a serious physical problem, leprosy, but he had a far greater problem, spiritual leprosy. Naaman was not saved. It doesn't matter how wealthy you are. It doesn't matter how famous you are. Every person is born into this world has a serious problem, spiritual leprosy. Every one of us is born unsaved. We need Jesus.
और नामान एक बहुत ही जो है गंभीर बीमारी से पीड़ित था, वो था कोढ़। लेकिन उससे भी बढ़कर एक और उसके जीवन में परेशानी थी, वो थी उसकी आत्मिक कोढ़। वो बचाया हुआ नहीं गया था, वो परमेश्वर को जानता नहीं था। तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि हम कितने अमीर हैं, हमारे पास कितना पैसा है, हम कितने लोग हमें पहचानते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा समस्या उन लोगों के साथ है जो इस संसार में पैदा हुए हैं और परमेश्वर को नहीं जानते। वो एक जो है आत्मिक कोढ़ से पीड़ित है। तो हमें बचने के लिए यीशु मसीह की जरूरत है। A little maid had a message from God for Naaman. We find this in 2 Kings chapter 5, verses 2 and 3. And the Syrians had gone out by companies and had brought captive out of the land of Israel a little maid. And she waited on Naaman's wife. And she said unto her mistress, Would God, my Lord, were with the prophet who is in Samaria, for he would recover him of leprosy. A young girl, a little maid, had been taken captive when Syria had raided Israel. She was taken as a slave, and she ended up in the home of Naaman to serve his wife. The little maid told Naaman's wife that a prophet in Israel, this was Elijah, could heal Naaman. This was a word from the Lord for Naaman. Why would this young maid want to help Naaman, who had raided Israel and took her as a slave? Why? That doesn't make sense, does it? और यहाँ पर हम देखते हैं इस पहला के बाद हम देखते हैं दूसरा राजा 5वें अध्याय का दूसरा तीसरे वचन में हम पढ़ेंगे। आरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वे नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसका कोढ़ चंगा कर देता। तो यहाँ पर लिखा है कि एक छोटी लड़की थी जो बंदी बनाकर लाई गई थी इजराइल से, इजराइल के देश से, और उसको बंदी बनाकर लाया गया और वो नामान के घर में आए, जो उसी की बीवी को मदद करती थी कामों में। तो जो उसने नाम लिया वो था इजराइल देश के एक भविष्यवक्ता का, जो था एलीशा। और उसने कहा कि ये व्यक्ति नामान को ही चंगा कर सकता है। तो ये जो शब्द था नामान के पास पहुंचा, परमेश्वर का शब्द। तो उसने जो जवान एक छोटी लड़की थी वो नामान को मदद क्यों करना चाहती थी, क्यों उसने इजराइल का नाम लिया और क्यों वो बंदी बनाकर वहां लाई गई, क्यों ऐसा क्यों हुआ? This maid was close to the Lord. She loved the Lord with all her heart. She served the Lord to the best of her ability. She was faithful. Despite her love for the Lord allowed her to be taken captive. She was a slave. It was the Lord that allowed this. It would have been easy for her to be filled with hatred and bitterness. I mean, she loved the Lord. She tried to live for God, but God allowed this to happen, and she could have hated and been bitter toward God. This little maid could have hated and been bitter toward Naaman. His army captured her, and Naaman kept her as a slave. And even though she didn't enjoy being a slave, she didn't complain. She didn't play God. She didn't blame God. She didn't play the victim. She didn't question God. और यहाँ पर हम देखते कि जो वो छोटी लड़की थी वो इजराइल देश से आई थी, तो वो परमेश्वर के बहुत नजदीक होगी और परमेश्वर से शायद अपने पूरे हृदय से प्रेम करती होगी, परमेश्वर को समर्पित होगी और बहुत ही विश्वास योग्य वो रही होगी। और इतना परमेश्वर से प्रेम करने के बावजूद क्यों परमेश्वर ने उसको बंदी बनकर आराम राज्य में भेजने के लिए परमेश्वर ने क्यों स्वीकार किया, क्यों ऐसा किया, क्यों उसको बंदी बनने के लिए परमेश्वर ने छोड़ दिया, और परमेश्वर ने ये सब क्यों होने दिया। और ये सब होने के बाद ये बहुत एक आसान सी एक परिस्थिति है कि उसका हृदय हो सकता है नफरत से और कड़वाहट से भरना चाहिए, क्योंकि इतना सब हुआ।
और मेरा मतलब है कि वो परमेश्वर से प्रेम करती थी और परमेश्वर के साथ जीवन बिताने की कोशिश करती थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने ऐसा क्यों होने दिया? तो हो सकता है ये होना चाहिए था कि उसके अंदर परमेश्वर के प्रति थोड़ा गुस्सा हो, थोड़ा नफरत हो या थोड़ी कड़वाहट हो। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि उसके 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 अंदर नामान के प्रति भी होना चाहिए था, क्योंकि वो उसे बंदी बनाकर लाया। एक छोटी जवान लड़की को वो बंदी बनाकर लाया, तो हो सकता है कि उसके अंदर ये होना चाहिए था नामान के प्रति कड़वाहट। और किसी को बंदी बनना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी उसने कोई शिकायत नहीं की, उसने परमेश्वर पे भरोसा रखा, उसने परमेश्वर पे कोई इल्जाम नहीं लगाया, उसने अपने आप को बेचारा नहीं दिखाया, उसने परमेश्वर से कोई सवाल नहीं किए इन सब बातों के होने के बावजूद। Everything that happens to a believer is caused by God, is allowed by God. We belong to Him. We were bought with a price, the blood of Jesus. We do not have to understand everything that happens to us. Many times we do not understand what is happening in our lives. We need to put everything in the hand of the Lord. We must seek to learn everything we can from the Lord when we're in the trial. What is the Lord trying to teach us? If we do this, the Lord will bring about a good in our lives. कई बार ये एक विश्वासी होने के नाते हमारे साथ होता है, क्योंकि परमेश्वर ये होने देता है, परमेश्वर चाहता है। हम परमेश्वर से, हम परमेश्वर के हैं। उसने हमें मोल लेके खरीदा, यीशु मसीह ने अपने लहू को हमारे लिए बनाया, बहाया है। और कई बार ये हम समझ नहीं पाते। बहुत सी बार आपके या हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, हम नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों हुआ है। कई बार ये हमारे जीवन में क्यों हो रहा है, हम नहीं समझ पाते। लेकिन उस समय पे हमें जरूरत है सब कुछ, सारी परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथ में देने के लिए। और हमें उस समय में परमेश्वर को ढूंढना है और हमें समझना है कि जब हम ऐसे ऐसे परिस्थितियों से, ऐसे परीक्षाओं से गुजरते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। और यदि परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों को लाया है, तो जरूर उसमें कुछ भला की बात है। When the opportunity presented itself, the maid was faithful to the Lord. She would be used as a divine connection to Naaman's healing. Naaman's healing brought peace between Syria and Israel for a time. Naaman was one of the most powerful men in the world at the time. By the divine providence of God, this little maid was placed in Naaman's home. The Lord did not explain this to the little maid, why he allowed her to become a slave, why she was placed in the house of Naaman. But the Lord expected this little maid to trust him, and trust him she did. When we're in a tremendous trial, the Lord expects us to trust him as well. We must understand, even in the midst of a trial, the Lord is guiding us, even then, every step, every direction. Think of this little maid. The Bible does not give her name. She's a nobody to the world. She had no power. She had no fame. Yet the Lord knew her. The Lord recognized her. The Lord used her. And her story is written in the Bible. She'll have a great reward in heaven. और जब ऐसी कोई परिस्थिति हमारे सामने आती है, तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे एक परिस्थिति आई उस छोटी लड़की के सामने, तो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य थी और परमेश्वर ने उससे इस्तेमाल किया नामान को चंगा करने के लिए और उसकी चंगाई के द्वारा आराम और इज़राइल देश के बीच में शांति स्थापित करने के लिए। उस समय में हम देखते हैं कि नामान बहुत ही एक शक्तिशाली व्यक्ति हुआ करता था उस संसार में। उस समय में नामान एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति होता था और उस समय पे परमेश्वर ने उस लड़की को नामान के घर में रखा या इस तरह से स्थापित किया कि उसके पीछे का मकसद शायद वो लड़की नहीं जानती थी। परमेश्वर ने उस लड़की को नहीं बताया और परमेश्वर ने लेकिन उसको अनुमति दिया, होने दिया कि वो वहां पर एक बंदी बनाकर रही जाए और उसको परमेश्वर ने वहां पर स्थापित किया नामान के घर में, क्योंकि परमेश्वर चाहता था, परमेश्वर इच्छा करता था कि वो छोटी लड़की परमेश्वर पे विश्वास करे और परमेश्वर के कार्यों को होने दे। और कई बार जब हम ऐसे ऐसे परीक्षाओं से गुजरते हैं, तो परमेश्वर चाहता है हम उस पर विश्वास करें। और हमें ये बात को समझना है, जब हम इन परीक्षाओं के, परिस्थितियों के बीच में होते हैं, परमेश्वर हमारे
एक एक कदम को, एक एक दिशा को निर्धारित करता है, वो हमें बचाता है, वो हमें संभालता है। अब हम थोड़ा सा इस छोटी जवान लड़की के बारे में आते हैं, हम सोचते हैं इसके बारे में, तो बाइबल में, पवित्र शास्त्र में इसका नाम नहीं दिया गया है। संसार में शायद ये कुछ नहीं होगी, इसके पास कोई ताकत नहीं होगी, कोई इसको जानता नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर इसको जानता था, परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया, उसकी कहानी को परमेश्वर ने इस पवित्र शास्त्र में इस्तेमाल किया, और उसके लिए स्वर्ग में बहुत ही बड़ा परमेश्वर ने एक उपहार को रखा है। Don't be a victim. No matter how hurt you've been, no matter how much someone has wronged you, don't be a victim. Don't become bitter and full of hatred. Look to the Lord. Let him use you. He'll turn your situation to good. This young maid, this young woman heard the Lord and God used her. God uses women. God elevates women. God promotes women. God does not put them down. It is the same Holy Spirit that lives in a woman, that lives in a man. And the Holy Spirit can and does use women. और हम अपने आप को बेचारे की तरह ना देखें। कोई फर्क नहीं पड़ता यदि किसी ने आपका दिल को दुखाया है और किसी ने आपके साथ गलत किया है, आप अपने अंदर कड़वाहट को और नफरत को जगह ना दें। ऐसे परिस्थिति में ये आसान बात नहीं है, जब हमें कोई दुख पहुंचाता है और हमें हमारे साथ गलत करता है, तो हम उसके प्रति प्रेम को दिखाएं, लेकिन उस समय हम परमेश्वर की ओर देखें और परमेश्वर को हमें इस्तेमाल करने दें, और हमारी परिस्थितियों को अच्छे की ओर ले जाने के लिए हमें परमेश्वर पे विश्वास करना है। ये एक छोटी लड़की, एक औरत, परमेश्वर ने इसको सुना, परमेश्वर ने इसका इस्तेमाल किया। हम देख सकते परमेश्वर औरत को इस्तेमाल किया है, करता है। परमेश्वर औरत को जो है अधिक से अधिकाई तौर पे इस्तेमाल करता है, उसको नीचे नहीं रखता। और ये पवित्र आत्मा जो औरत में, एक नारी में है, वो एक नर में भी है, वो एक पुरुष में भी है, वही स्त्री में भी है। और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा है वो आदमी को ही इस्तेमाल करेगा और औरत को नहीं, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा दोनों में समान रूप से, और परमेश्वर समान रूप से औरत और आदमी से प्रेम करता है, इस्तेमाल करता है। Naaman's wife told Naaman what the maid said. This was a word from the Lord, but Naaman wouldn't receive it. Instead, Naaman decides to use his power and influence to get what he needed. He goes to the king of Syria, his powerful friend, for help. Isn't this what we do when we have a problem? We look to man, we look to everything and everyone except the Lord, and there is no help. Look to the Lord, look to the Lord, look to the Lord. और नामान की पत्नी ने जो कुछ भी वो छोटी जवान लड़की जो बंदी बनाकर लाई गई थी उससे कहा, तो नामान की पत्नी ने वो नामान को बताया, लेकिन उसने उसको ग्रहण नहीं किया, और बजाय उसके उसने क्या किया कि अपना पदवी को और अपना जो ताकत था उसका इस्तेमाल करने का सोचा, उसने निर्णय लिया। तो उसने क्या किया, जो कुछ उसको चाहिए था वो राजा के पास गया, जो राजा के उसने ताकतवर राजा था उससे उसने मदद को लिया। और यही अक्सर हम करते हैं, जब हम किसी परेशानी में होते हैं तो हम कहाँ देखते हैं, हम एक मनुष्य की ओर देखते हैं, और सब कुछ हम देखते हैं जो हमें मदद कर सकता है, जहां से संभव हमें मदद आ सकती है। परमेश्वर को छोड़कर हम व्यक्तियों पे, लोगों पे, चीजों पे मदद की ओर देखते हैं, लेकिन उधर से हमें मदद नहीं मिलती। बहुत बार हम निराश हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बोलना चाहते हैं कि आप परमेश्वर को देखें, केवल और केवल परमेश्वर को देखें। Naaman tells the king of Syria about his problem. The king of Syria is a very powerful man. The king of Syria has connections. He knew other powerful people. The king of Syria was a man who could get things done for his friend Naaman. The king of Syria wrote a letter to the king of Israel. We find this in 2 Kings chapter 5, verses 5 and 6. And the king of Syria said, Go, and I will send a letter unto the king of Israel. And he, that's Naaman, departed and took with him 10 talents of silver and 6,000 pieces of gold and 10 changes of raiment, and brought the letter to the king of Israel, saying, Now when this letter is come upon you, behold, I have therewith sent Naaman my servant to you, that you may recover him of his leprosy. So Naaman takes his connection, the letter from the king of Syria,
He takes his position and power. He's a mighty general, the most powerful military leader in the world at the time. And he takes lots of silver and gold worth millions and goes to Israel. और यहाँ पर हम देखते हैं नामान ने जो राजा था आराम का उसको अपनी समस्या के बारे में बताया और आराम का राजा बड़ा शक्तिशाली एक व्यक्ति था। उसके बहुत सारे जो लोगों से जान पहचान थी और वो उसके और भी बहुत सारे लोगों से जान पहचान थी जो उसको जानते थे। तो राजा ने क्या करा, वो उसको हर संभव तौर पे मदद करना चाहता था। तो हम देखते हैं यहाँ पे 5वें और 6ठे वचन में इस प्रकार से लिखा है, उसने राजा ने आराम के राजा ने इज़राइल के राजा को पत्र लिखा। उसमें इस प्रकार से लिखा, तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इज़राइली लड़की इस प्रकार कहती है, आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किकार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। और वह इज़राइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें लिखा था, जब ये पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो नामान है, सबसे पहले उसने अपने जो उसके पास जो जान पहचान थी, यानी कि आराम का एक बड़ा व्यक्ति राजा का एक पत्र उसने लिया और उसके बाद वहां पर उसका जिक्र है कि वो एक जो शक्तिशाली, वो एक उधर का सेनापति था उस समय पे, वो उसने इस्तेमाल किया, वो पदवी को इस्तेमाल किया और बहुत सारा सोना चांदी जो अरबों खरबों का था वो वहां पर वो लेकर गया। This was all useless. All his connections, all his power, and all his wealth could not cure leprosy. There was no cure for leprosy. Naaman needed a miracle. Naaman needed the Lord. Are you in a similar position? Your power, your connections, and your money cannot help you. Do you need a miracle? Turn to the Lord. और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सब बेकार था। उसका जो जान पहचान था, उसका पदवी था, उसका पैसा था, वो सब कोढ़ को ठीक नहीं कर सकता था और कोई उसका इलाज नहीं था। नामान को एक चमत्कार की जरूरत थी, जो नामान को परमेश्वर की जरूरत थी। तो क्या आप इसी तरह की परिस्थिति में हैं? आपका ताकत, आपका जो जान पहचान है, आपका पैसा आपको हेल्प नहीं कर पा रहा है, आपको मदद नहीं कर रहा है, लेकिन आपको एक चमत्कार की जरूरत है। तो मैं आपको बताना मांगता हूँ कि आपको परमेश्वर की ओर मुड़ने की, उसकी ओर देखने की जरूरत है। Naaman delivers the letter to the king of Israel. The king of Israel reads the letter. We find this in 2 Kings chapter 5 and verse 7. And it came to pass when the king of Israel had read the letter that he rent his clothes and said, am I God to kill and make alive, that this man does send unto me to recover a man from leprosy? Wherefore consider you, I pray you, and see how he seeks a quarrel against me. और यहाँ पर हम देखते हैं जो नामान ने वो जो पत्र था इज़राइल के देश के राजा को दिया और इज़राइल के देश के राजा ने इसको पढ़ा और उसमें लिखा है 7वें वचन में ये लिखा है, यह पत्र पढ़ने पर इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मरने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं। सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। The king of Israel gets upset. Why? He tears off his clothes and sarcastically he says, am I God? The good thing is he knows he's not God. He knows he cannot cure Naaman. The king of Israel had no faith in God, despite the fact that he was the king of God's people. The king of Israel's view of leprosy was that Naaman would die. The king of Syria might as well have sent him a corpse so he could resurrect it. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इज़राइल देश का राजा था वो ये सुनकर नाराज हो गया और उसने अपने कपड़े फाड़ लिए और उसने इस तरीके से कहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ? और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये कि वो जानता था वो परमेश्वर नहीं है और वो जो है लोगों को, वो नामान को चंगा नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इज़राइल के देश के राजा के बारे में, और इज़राइल का देश को परमेश्वर में विश्वास नहीं था,
लेकिन वो परमेश्वर के लोगों का राजा जरूर था, लेकिन उसे विश्वास नहीं था। और कोढ़ के विषय में हो सकता है नामान मर सकता था, लेकिन राजा जो था उसने कहा क्या मैं परमेश्वर हूँ। वो परमेश्वर, वो जानता था कि वो परमेश्वर नहीं है और वो नामान को चंगा नहीं कर सकता, ठीक नहीं कर सकता है। The king of Israel had no faith in God. Naaman had no faith in God. You know who had faith in God? The little maid that no one knew. At this point, Naaman was not heeding the word of the Lord given to this young maid. The king of Israel believes the king of Syria sent Naaman to him so that the king of Israel would fail to heal Naaman. And then Syria would use this excuse to go to war with Israel. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इज़राइल का राजा था उसको परमेश्वर पे विश्वास नहीं था, नामान को विश्वास नहीं था। और क्या आप जानते हैं तो फिर किसको विश्वास था? वो एक छोटी लड़की जिसको बंदी बनाकर लेकर गया, जिसको कोई नहीं जानता था, उसको विश्वास था। और इस समय पे नामान जो है परमेश्वर का शब्द सुन के जो है वो लड़की का बातें को जानकर नहीं आया था। और इज़राइल का जो राजा था वो ये उसको ये लगा कि जो आराम का राजा उसने नामान को इसलिए भेजा है कि वो उसे चंगा करे, और नहीं कर पाया तो इसके विरुद्ध में वो फिर उनके साथ एक युद्ध को छेड़ दे। Somehow Elijah, the prophet, hears of the letter to the king, and Elijah says, "Send Naaman to me." We find this in 2 Kings chapter 5 and verse 8. And it was so when Elijah, the man of God, had heard the king of Israel had rent his clothes, that he sent to the king, saying, "Wherefore have you rent your clothes? Let him come now to me, and he shall know there is a prophet in Israel." और किसी तरह एलीशा जो भविष्यद्वक्ता था उसने इस बात को सुना कि राजा ने अपने जो है कपड़े को फाड़ लिया है, तो उसने बोला कि तू नामान को भेज दे। और इसको हम पढ़ते हैं 8वें वचन में, 8वीं आयत में, कि ये सुनकर कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्य वक्ता है। Naaman sets out with his caravan of horses, camels, soldiers, servants, flag bearers, and personal attendants. He makes his way to the humble home of the prophet of God. Naaman expects special treatment. He expects Elijah to come out and personally take charge of his healing. He's in for a big surprise. None of this happened. और नामान ने क्या कर अपने घोड़ों और रथों समेत जो एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हो गया। और जो ये भविष्य वक्ता था, परमेश्वर का एक भविष्य वक्ता था, नामान ने सोचा कि ये मुझे कुछ अलग एक ट्रीटमेंट देगा, कुछ अलग से मेरे साथ व्यवहार करेगा। उसने सोचा था एलीशा खुद चलकर बाहर आएगा और उसकी चंगाई का जिम्मा उठाएगा, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा उस समय पे चौंक गया, क्योंकि ये सारी बातों में से कोई भी बात नहीं हुई। Elijah wouldn't even come out to meet Naaman. He sent his servant to tell Naaman to wash in the Jordan 7 times and he would be healed. To Naaman, this proud Syrian general, nothing was going right. He's in enemy territory. He's desperately seeking a cure. The king of Israel couldn't help him. His wealth, power, and fame could not help him. And now the prophet Elijah wouldn't meet with him personally. और यहाँ पर क्या है कि एलीशा जो भविष्यवक्ता था वो नामान से मिलने नहीं आया। उसने अपने जो सेवक था उसको कहला भेजा कि जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा और तू चंगा हो जाएगा। और नामान जो कि एक सेनापति था, जिसको गर्व था, उसको ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो एक सेनापति था। वो बहुत ही ज्यादा बेचैन था अपनी चंगाई को लेकर, और इज़राइल देश के राजा ने भी उसको कोई मदद नहीं किया। उसका जो उससे उसका पत्र लेकर आया, उसका पदवी से और किसी भी बात से उसको मदद नहीं मिला। और यहाँ तक कि जब एलीशा भी उससे मिलने नहीं आया तो ये सारी बातें उसको अच्छी नहीं लगी। Naaman thought his healing or miracle would happen by Elijah, the man of God, coming out and standing before him, calling on the name of the Lord and placing his hand over Naaman's leprosy, and he would recover.
Sometimes we want to tell God how he should do a miracle, but he's God. He doesn't think like we do. He doesn't always do what we would do. He does his miracles in his way, in his time. I've had some of the biggest miracles in my life. I could not even imagine the miracles that God did for me. They were bigger and better than anything I could dream or think about. He brought me a beautiful wife, Julia, who loves me all the way from China. I didn't have to go to Plenty of Fish or Match.com. और नामान ने सोचा अपनी चंगाई और अपने चमत्कार के बारे में, उसने सोचा कि शायद हो सकता है प्रभु का ये जो भविष्यवक्ता है ये बाहर आए, उसके सामने खड़ा हो, परमेश्वर के नाम को पुकारे और उसके ऊपर हाथ रखे और वो चंगा हो जाए। तो ये ऐसी उसकी सोच थी। तो कई बार हम भी परमेश्वर को बताते हैं कि चमत्कार ऐसा होना चाहिए, हम सोचते हैं ऐसा होगा, परंतु वो परमेश्वर है, वो वैसा नहीं सोचता जैसा हम सोचते हैं, वो वैसा नहीं करता जैसा हम चाहते हैं वैसा हो। और उसका चमत्कार करने का अपना एक समय है, एक परिवर्तन का अपना एक समय, अपना एक तरीका है। और मेरे जीवन में भी बहुत बड़े चमत्कार हुए जो मैं सोच नहीं सकता था, जो परमेश्वर ने मेरे लिए किए, जो बड़े थे और बेहतर थे, जिनके बारे में मैं सोच नहीं सकता था। परमेश्वर ने मुझे मेरी पत्नी जूलिया से मिलाया, जो चाइना से मुझे मिली, और चाइना से परमेश्वर उसे मेरे साथ लेकर आया। मैंने कोई Match.com या प्लेंटी और फिश पे नहीं पाया, लेकिन परमेश्वर की ओर से पाया। God was going to do a bigger miracle for Naaman than just healing his leprosy. God was going to heal Naaman's soul. He was going to save Naaman. This is the biggest miracle that God can do for anyone. और परमेश्वर जो है नामान की जिंदगी में एक बड़े चमत्कार को करना चाहता था। केवल चंगाई, कोढ़ से चंगाई देकर नहीं, परंतु वो उसकी आत्मिक चंगाई को, उसके प्राण को बचाना चाहता था, उसके आत्मा को बचाना चाहता था, नामान को बचाना चाहता था। और ये किसी के लिए भी सबसे बड़ा चमत्कार है जो परमेश्वर कर सकता है, उसको बचाकर। For Naaman to get saved, God had to deal with Naaman's pride. Do you know that pride is a sin that God hates the most? The 7 sins that God hates the most are listed in Proverbs chapter 6, verses 16 through 19. A proud look is number 1. A proud look is pride. Pride was Naaman's problem. Pride is probably the number 1 reason that people don't come to Jesus. Pride is probably the number 1 reason that people go to hell. Pride. और यहाँ परमेश्वर को जब नामान को बचाना था, तो एक बात से परमेश्वर को नामान को निकालना था, वो था उसका अंदर जो गर्व था, वो घमंड था। और ये आप जानते हैं कि घमंड जो एक पाप है जिससे परमेश्वर सबसे ज्यादा नफरत करता है। 7 चीजों के बारे में जो है लिखा गया है नीति वचन 6 के 16 से 19 में जब हम पढ़ेंगे, तो उसमें सबसे पहला बात है घमंड से चढ़ी हुई आंखें। तो नामान का भी यहाँ पर जो परेशानी था वो घमंड था। तो कई बार घमंड जो है एक पहला कारण होता है कि परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास लोग नहीं आते। घमंड ही एक पहला कारण होता है कई बार जो लोग नरक की ओर जाते हैं। Pride was Naaman's problem. Naaman thinks he is somebody. He commands the armies of Syria. He gives a command and it is instantly obeyed. He's wealthy. He has powerful political connections. He's loved and famous in his country. He travels to Elijah with a large entourage of soldiers, attendants, horses, camels, silver and gold. Somebody told him he was somebody and he believed it. Now he's a nobody. Elijah won't even come out to see him, and he's told to go wash in the Jordan 7 times. और यहाँ पर हम देखते हैं घमंड सबसे पहला जो है नामान का परेशानी था। उसे लगता था वो कुछ है, वो आराम की सेना को वो आज्ञा देता है और वो वहां और लोग उसको मानते हैं। वो एक बहुत ही एक ताकतवर व्यक्ति है, उसके पास पैसा है, अच्छा राजनीतिक उसके संबंध है और लोग उसको प्यार करते हैं पूरे देश में। वो उसको लोग जानते हैं और इसी वो वहां पर गया एलीशा से मिलने के लिए, बहुत सारे रथों को, घोड़ों को, सोने चांदी को लेके। और हो सकता है किसी ने उससे कहा हो कि वो कुछ है और उसने उस पर विश्वास किया। लेकिन जब वो वहां पहुंचा
उसके साथ वैसा कुछ स्वभाव, उसके साथ वैसा कुछ सलूक नहीं किया गया। और एलीशा बाहर भी नहीं आया, उसे देखा भी नहीं, उसने सीधा कहलवा दिया सेवक के हाथों में कि यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार। Naaman is angry. Why? His pride. Doesn't Elijah know who he is? How dare Elijah not come out to greet him? How dare Elijah tell him to go wash in the muddy Jordan 7 times? Doesn't Elijah know who he is? Pride is the sin that God hates the most. Why? I believe it's the main reason that people don't come to Christ. It's probably the main reason that people go to hell. Pride. और नामान यहाँ पर बहुत गुस्सा था। क्यों? उसके घमंड की वजह से। क्या एलीशा नहीं जानता था वो कौन है? और कैसे एलीशा ने हिम्मत किया कि वो बाहर नहीं आया और उससे बात नहीं किया, उससे मिला नहीं। और कैसे हिम्मत किया एलीशा ने जाके उसको सीधा बोल दिया यरदन नदी में जाके 7 बार डुबकी लगा। क्या एलीशा नहीं जानता था वो कौन है? यहाँ पर हम देखते हैं जो सबसे बड़ी चीज परमेश्वर को नापसंद है वो है घमंड। परमेश्वर उसको पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि घमंड ही एकमात्र कारण है जो लोगों को परमेश्वर के पास नहीं आने देता और जो लोगों को नरक में डालता है। वो एकमात्र पहला कारण गर्व है। I want to share the testimony of another man who almost didn't come to Jesus because of his pride. Did you ever hear of Charles Spurgeon? He's one of the most famous preachers ever. He was very brilliant, eloquent, and an educated man. He preached to thousands. His sermons are still widely read and studied. On Sunday, January 6th, 1850, Charles Spurgeon was 15 years old. He was not saved. There was a heavy snowstorm. He was trying to get to his church in his hometown. He went as far as he could in the snowstorm. He couldn't make it, and he had to seek shelter from the storm. और मैं एक व्यक्ति की एक गवाही को मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा, जो परमेश्वर को जानता नहीं था और परमेश्वर के पास नहीं आना चाहता था अपने घमंड की वजह से। क्या आपने कभी चार्ल्स स्पर्जन नाम का व्यक्ति का नाम सुना है? बहुत ही ज्यादा लोग उनको पसंद करते थे, प्रचारक थे, बहुत ही बड़े प्रचारक थे, बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही एक शिक्षित व्यक्ति थे। उन्होंने कई हजारों लोगों के बीच में प्रचार किया और आज भी उनके जो प्रचार हैं वो लोगों में पढ़े जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। तो एक बार रविवार का दिन था, 6 जनवरी 1850 की बात है, जब चार्ल्स स्पर्जन करीब 15 साल के थे, वो बचाए नहीं गए हुए थे। वहां पर बहुत तूफानी जो बर्फबारी हो रही थी और वहां पर वो ढूंढ रहे थे कि वो कहां से इस तूफान से बचें। He found the primitive Methodist church. He joined them despite the fact that all he knew about the Methodists is that they sang so loudly they made people's heads ache. Listen to Spurgeon's pride speaking. There were only about 15 people. The minister did not show up because of the storm. A layman took the pulpit to preach. This was Spurgeon's description of the layman who preached. At last, a very thin man, a shoemaker or a tailor or something of that sort, went up in the pulpit to preach. Now it is well that preachers be instructed, but this man was really stupid. He was obligated to stick to his text for the simple reason that he had little to say. और यहाँ पर देखिए जो स्पर्जन का घमंड एक तरह से बोल रहा था कि हम केवल 15 लोग हैं। उसको एक जगह मेथोडिस्ट चर्च में एक जगह मिला जहां पर वो उस तूफान से बचे और वहां पर उसको पसंद नहीं था वो लोग जो है बहुत ऊंचे स्वर में गाना गाते थे जिससे सिर दर्द होता था। वहां पर एक तरह से उसका गर्व जो है वहां पर उसका घमंड वहां पर हम देख सकते थे। वो घमंड से उसने बोला कि हम 15 लोग थे और कोई एक बड़ा व्यक्ति नहीं था और जो कोई भी वहां पर जो है सेवकाई के लिए नहीं आया था, तो क्योंकि वहां पर तूफान था। तो एक ऐसे ही एक छोटा व्यक्ति हो सकता है, जूते बनाने वाला पतला सा या बहुत ही छोटे तबके का एक व्यक्ति वहां पर प्रचार के लिए गया और वो व्यक्ति थोड़ा बेवकूफ लग रहा था। और तो इस तरह की बातें चार्ल्स स्पर्जन ने वहां पर सोचा और कहा। The text was from Isaiah chapter 45 and verse 22. Look unto me and be saved, all the ends of the earth. The lay preacher could not even pronounce the words correctly, but that did not matter.
Spurgeon caught a glimmer of hope in the text. The late preacher began his message. This is a very simple text indeed. It says, look. Now look and don't take a great deal of pain. It ain't lifting your feet or your finger. It is just look. Well, a man needn't go to college to learn to look. You may be the biggest fool, and yet you can look. A man needn't be worth 1,000 a year to look. Anyone can look. Even a child can look. और यहाँ पर उसने जो है प्रचार किया यशाया का पुस्तक में से, यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक 45 अध्याय और 22 वचन से उसने प्रचार किया और उसमें इस प्रकार से लिखा है, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं है। जो वहां पर उस समय प्रचार कर रहा था वो व्यक्ति अपने शब्दों को शायद ठीक तरह से बोल नहीं पा रहा था, उससे मतलब नहीं है, लेकिन स्पर्जन ने वहां पर जो है उस बात को पकड़ा और वहां पर जब वो प्रचार कर रहा था उसने बहुत ही साधारण शब्दों में इन वचनों को कहा, देखो देखो। तो कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता आप कॉलेज पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, आपके पास पैसा है कि नहीं है, लेकिन वहां पर एक सिंपल बात बोला, देखो। And then the text says, look unto me. Many of ye are looking to yourselves, but it's no use looking there. You'll never find comfort in yourselves. Some say, look to the Father. No, look to him by and by. Jesus Christ says, look to me. Some say we must wait on the Spirit's working. You have no business with that just now. Look to Christ. The text says, look to me. और यहाँ पर वचन कहता है तुम मेरी ओर फिरो, और बहुत सारे लोग हैं जो तुमसे कहेंगे कि इधर देखो उधर देखो, बट यहाँ पर जो वचन कहते हैं तुम मेरी ओर फिरो, परमेश्वर की ओर फिरो, किसी और की तरफ नहीं, परमेश्वर की ओर हमको देखना है, केवल परमेश्वर की ओर। The preacher went on, look unto me, I'm sweating great drops of blood. Look unto me, I'm hanging on the cross. Look unto me, I'm dead and buried. Look unto me, I rise again. Look unto me, I ascend into heaven. Look unto me, I'm sitting at the Father's right hand. O poor sinner, look unto me, look unto me. और यहाँ पर जो प्रचार कर रहा था बहुत ही छोटे तबके का एक व्यक्ति था, उसने अपना प्रचार को जारी रखते हुए कहा कि तुम मेरी ओर फिरो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए अपने खून का कतरा बहाया, तुम मेरी ओर फिरो। पर वचन की वो कह रहा था, परमेश्वर कहता है तुम मेरी ओर फिरो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर कुर्बान हुआ। तुम मेरी ओर फिरो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए मारा गया और गाड़ा गया। तुम मेरी ओर फिरो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जी उठा। तुम मेरी ओर फिरो क्योंकि मैं स्वर्ग से उतरा और वापस से पिता के दाहिनी ओर जाकर बैठ गया। और सारे पापी लोगों, तुम मेरी ओर फिरो, तुम मेरी ओर फिरो। Because of this pride, Naaman was angry. Elijah wouldn't see him. Elijah told him to go wash in the dirty water of the Jordan 7 times. If he had to wash in any rivers, he wanted to wash in the clearer, cleaner waters of 2 rivers in Syria. Naaman is ready to go home, to leave just as diseased as he came, full of leprosy because of his pride. But Naaman's servants intervened and said in verse 13, my father, if the prophet told you to do some great thing, would you not have done it? How much rather then when he said to you, wash and be clean? Naaman relents. What did he have to lose? He will go wash in the muddy waters of the Jordan. और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके गुस्से की वजह से, नामान के गुस्से की वजह से वो क्रोधित हो जाता है, क्योंकि एलीशा उसको देखने नहीं आता, खाली कहलवा देता है कि जाके यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाओ। तो वो सोचता है कि मैं कहीं किसी भी नदी में डुबकी लगा सकता हूँ, और मैं सीरिया में जो मेरा आराम का देश है वहां पर भी लगा सकता हूँ, इतनी अच्छी अच्छी नदियां हैं। और नामान ने तय किया वो वापस जाएगा जैसा वो है, कोड़ी है, चाहे कैसी भी उसकी हालत है, लेकिन अपने घमंड की वजह से उसने उन शब्दों को नहीं सुना और वो जाने के लिए तैयार हुआ। तब यहाँ पे 13वें वचन में इस प्रकार से लिखा, उसके सेवक ने कहा, तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो तू क्या उसे नहीं करता? फिर जब वो कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसके मानना चाहिए।
Naaman wanted to wash in the Abna or Farfar River. These were two of the most beautiful rivers in Syria. They were much cleaner, they were much clearer than the muddy waters of the Jordan. Why couldn't he wash in the water, the cleaner waters of Syria? Why did he have to wash 7 times in the muddy Jordan? I want to say this, there was no healing in the clean waters of the river of Syria. There was no healing in the muddy waters of the Jordan. These rivers had no healing powers whatsoever. और नामान ने जो है चाहता था कि वो उधर जो आराम का बड़ी 2 सुंदर नदियां अबाना और फारफार नदियां उसमें जाके वो डुबकी लगाए क्योंकि वो बड़ी सुंदर हैं, साफ हैं। फिर क्यों जो है ये यर्दन का जो कीचड़ वाला जो पानी है उसमें डुबकी लगाने को कहा और क्यों उसने ऐसा कहा 7 बार ही जाके यर्दन नदी में डुबकी लगाना है। और मैं आपको बताना मांगता हूँ कि कोई सुंदर नदी के अंदर जो है चंगाई का ताकत नहीं है। यर्दन नदी के अंदर चंगाई का ताकत नहीं है। किसी भी नदी में चंगा करने का ताकत नहीं है। Why did Elijah tell Naaman to wash in the Jordan River 7 times? The Lord had to deal with Naaman's pride. Men have to be humbled before they come to Christ. Naaman had to be obedient. He had to set aside his pride. He had to obey the Lord. और नामान ने यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाने को क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर नामान के घमंड को खत्म करना चाहता था। वो चाहता था कि परमेश्वर जब यीशु मसीह के पास आए और मसीह के पास आए तो अपने आप को नम्र करके आए। जो नामान है वो परमेश्वर का आज्ञाकारी हो, अपने घमंड को हटाकर परमेश्वर की आज्ञा को माने। Naaman had to wash in the muddy Jordan 7 times. Why? In this case, the Jordan River is a type or symbol of the cross. Jesus would die on the cross for our sins, and the blood of Jesus would wash away our sins. The Jordan River was dirty and muddy. It was not beautiful like the rivers of Syria. The cross is not a pretty picture. It's ugly, it's bloody. It speaks to the great price that Jesus paid for our sins. The only possible thing that you can say about the cross is that it works. The cross alone cures. The cross alone cleanses. The cross alone brings a new creation in Christ. The cross alone can give victory over every sin. By saying the cross, it means putting your faith in Jesus and what he did at the cross. The ways of the world may seem attractive, like the rivers of Syria, but they can never bring salvation or healing. The cross is offensive. The cross is not attractive, yet it will cleanse the worst sinner. और नामान को 7 बार यर्दन नदी में जाकर क्यों धोने को बोला, क्यों खुद को धोने को बोला? यर्दन नदी एक तरह से क्रूस को दिखाती है। यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया और उसके लहू के द्वारा उसने हमारे पापों को धो करके साफ किया। जो यर्दन नदी थी वो गंदी थी, थोड़ी कीचड़ उसमें था, वो उतनी सुंदर नहीं थी। जो आराम के राज्य, आराम देश में नदियां थी वो उतनी सुंदर नहीं थी और क्रूस भी बिल्कुल सुंदर नहीं दिखता, बहुत अच्छा उसको देखकर प्रतीत नहीं होता। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने उस पर अपने प्राणों को दिया, एक बहुत बड़ी कीमत को अदा किया। तो जो एक बात हम क्रूस के बारे में कह सकते हैं कि क्रूस एकमात्र ऐसा है जिसके द्वारा हम चंगाई को पाते हैं, उसके द्वारा हम चंगे होते हैं, एक नए जीवन को पाते हैं और पाप के ऊपर जयवंत पाते हैं। और जब मैं इस क्रूस को जब मैं बोलता हूं तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह पे विश्वास करना और जो कुछ उसने क्रूस पर हमारे लिए किया उस पर विश्वास करना। Naaman finally obeys. He had to strip and dip. This does not mean that Naaman had to get naked. He had to set aside all the outward appearances of his worldly power. He had to humble himself. He had to set aside his pride. If he had a sword, he had to set it aside. If he had a spear, he had to hand it to somebody. If he was wearing the clothes of a commanding general, he had to take them off. If he had a chest of medals, they would have to go. To be healed, to be saved, he had to come to the cross. He had to come to Jesus the same way as everybody else. और नामान ने आखिर में उधर उसका वचन को माना और उसके वचन के अनुसार उसे जाके वहां डुबकी लगाई
और जब उसने डुबकी लगाई तो मतलब उसका जो उसने पहनावा था और जो कुछ उसने लिया हुआ था, उसकी तलवार थी और उसके शरीर पे जो उसने ग्रहण किए हुए थे सारे जो जो उसको पुरस्कार जो मेडल्स मिलते हैं वो सब कुछ जो था उसे एक तरफ रखना था। चंगे होने के लिए, बचाए जाने के लिए उसे क्रूस के नजदीक आना था। उसे यीशु मसीह के करीब आना था और उसी प्रकार जैसे बाकी लोग आते हैं उसे अपना हर एक दुनियावी बातों को एक तरफ करके उसे नम्र होना था। Naaman, in obedience to God, strips off all the evidence of his greatness and goes down into the muddy waters. He's doing this in front of everyone, his soldiers, his servants, flag bearers, and aides. He dips once, no change. He dips a second time, the sores are still there. He dips a third time, it's still the same. He dips a fourth time, nothing changed. He dipped a fifth time, and his body is still covered with scabs and sores. He dips a sixth time, the leprosy is still there. He must have thought, I'm a fool. Why am I doing this? It isn't working. और यहाँ पर हम देखते हैं नामान ने वचन को परमेश्वर के वचन को माना। उसने अपने सारे जो उसे घमंड को लेकर आते थे वो सारी बातों को उसने हटाकर अपने शरीर से अलग किया, उसकी तलवार और बाकी सब। और वो उस यरदन नदी में गया सबके सामने, जो वहां पर सेना थी और जो उसके नौकर थे झंडे उठाने, उन सबके सामने वो उस यरदन नदी में गया। उसने पहली बार डुबकी लगाई, कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार लगाई, तीसरी बार लगाई, चौथी बार लगाई, कुछ नहीं हुआ। पांचवी बार भी लगाई और छठी बार भी लगाई तो कोढ़ वैसे का वैसे ही था। उसने सोचा होगा क्या मैं पागल हूँ और मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा है। Maybe Naaman's people had to encourage him. You've gone this far, dip one more time and see what happens. And that's what I'm saying to you. Dip one more time, dip one more time, dip one more time. Naaman comes up out of the water, and there's an audible gasp from the people on the shore. Naaman is also saved. And he says, now I know there is no God in all the earth but in Israel. And Naaman is healed and Naaman is saved. और यहाँ पर हो सकता है नामान के लोगों ने उसको उसका प्रोत्साहन बढ़ाया हो। जब कुछ 6 बार में कुछ नहीं हो तो उसको बोलते होंगे एक और बार डुबकी लगाओ, देखते क्या होता है, एक और बार डुबकी लगाओ। जब उसने 6 बार डुबकी लगाया, और यही मैं आपके जीवन में कहना चाहता हूँ, एक और बार डुबकी लगाए, एक और बार डुबकी लगाए। और नामान जब पानी से बाहर आता है तो वो देखता है कि वो चंगा हुआ, वो बचाया गया, और वो इस बात को कहता है कि अब मैं जानता हूँ कि इस पूरे पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। पर जो नामान था वो चंगा हुआ और वो बचाया गया। Why did Naaman have to dip into the Jordan 7 times? 7 is God's number. It's for perfection and completeness. Naaman was totally healed and Naaman was totally saved. और नामान जो है वहां पर 7 बार उसने क्यों डुबकी लगाया, क्योंकि 7 जो संख्या है, 7 दर्शाता है परमेश्वर के बारे में उसकी संपूर्णताई को। और उस समय पे नामान पूर्ण रूप से चंगा हुआ, बचाया गया। There's a moment of pleasure in sin. Remember, pride is God's number one sin. Naaman took pride in his power, his wealth, his fame, and his connections, but the pride in these things couldn't save or heal him. और यहाँ पर हमें कुछ समय अच्छा लगता है जब हम पाप में होते हैं, तो जो घमंड है वो भी एक पाप की तरह है और वो पहले नंबर पे परमेश्वर उसको रखता है। और नामान का जो घमंड था वो उसकी पदवी, उसका पैसा, उसको जो लोग उसको जानते थे उन सब में था। और लेकिन ये सब घमंड उसको बचा नहीं पाया, उसको चंगा नहीं कर पाया। We think we can hold on to the pleasures of sin, but the only thing we can hold on to are sin's damning consequences. I want to say that again. We think we can hold on to the pleasures of sin, but the only thing we can hold on to are sin's damning consequences. और हमें लगता है कि जब हम ये पाप में होते तो हमें खुशी मिलेगी, या घमंड जो था उसमें खुशी है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ तो इसके कुछ ना कुछ हमें भुगतान करने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ। अगर हम पाप हमारे जीवन में तो उसका कुछ ना कुछ भुगतान हमें करना पड़ेगा। Naaman set aside his pride and he was healed and saved. You can be saved and healed if you set aside your pride, wash and be clean. You can be saved and healed
set aside your pride, wash and be clean. और नामान ने अपने घमंड को एक तरफ कर दिया, हटा दिया, और वो बचाया गया और चंगा हुआ। आप भी बचाए जा सकते हैं, चंगे हो सकते हैं, यदि आप अपने घमंड को एक तरफ रखें, अपने आप को धो के शुद्ध करें। अपने जो आप भी बचाए जा सकते हैं और चंगे हो सकते हैं, यदि आप अपने घमंड को एक तरफ करें, वो अपने आप को धोएं और अपने आप को साफ करें। Maybe some of you that are listening are spiritual lepers. और हो सकता है मुझे जितने लोग सुन रहे हैं उनमें से कुछ लोग हो सकता है इस वक्त आत्मिक रूप से कोढ़ी हों। You're not saved. हो सकता है बचाए ना गए हो। There's no cure except the cross of Jesus. और यीशु मसीह ने जो क्रूस पर किया उसके अलावा कहीं और चंगाई नहीं है, किसी और बात में चंगाई नहीं है। Naaman's pride, his military connections, his wealth, his power couldn't save or heal him. और नामान का घमंड, उसकी पदवी, उसका पैसा, उसके लोग, उसकी जान पहचान, कोई भी उसको बचा नहीं पाया, उसको ठीक नहीं कर पाया। You can't save yourself. आप अपने आप को खुद नहीं बचा सकते हैं। Your good works don't save you. आपके अच्छे काम आपको नहीं बचा सकते हैं। Your money or wealth can't save you. आपका पैसा और आपकी प्रतिष्ठा आपको नहीं बचा सकते हैं। You need to set aside your pride और आपको अपना जो है घमंड एक तरफ रखना है and be washed in the blood of Jesus. और आपको खुद को यीशु मसीह के लहू से धो के साफ करना है। If you want to be saved, और यदि आप बचना चाहते हैं, repeat this prayer after me. और मेरे पीछे ये प्रार्थना को करें। Father, I come to you in the precious name of Jesus. और पिता, मैं आपके पास आता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। And Jesus, I ask you to forgive my sins और यीशु मसीह, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे पापों को क्षमा करें। and I invite you into my life as my Lord and my Savior. और मैं आपको अपने जीवन में आमंत्रित करता हूँ अपने प्रभु के रूप में, अपने बचावकर्ता के रूप में। I do not put my faith in anything that I do, और मैं अपना विश्वास उस पर नहीं, जो मैं करता हूँ उस पर नहीं रखता। I put my faith in you, Jesus, and what you did at the cross. और मैं अपना विश्वास बल्कि उस पर रखता हूँ मैं अपना विश्वास आप पर रखता हूँ, और जो कुछ आपने क्रूस पर मेरे लिए किया, मैं उस पर अपने विश्वास को रखता हूँ। I ask you for the gift of eternal life, and I receive it, and I thank you for it. और मैं आपसे अनंत काल के उस जीवन को मांगता हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि मैंने पाया, और उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। Jesus, please be the Lord of my life and deliver me from all sin. और यीशु मसीह, आप मेरे जीवन के प्रभु हो जाएं और मुझे पूर्ण रूप से, पूरी तरह से मुझे पाप से निकाल दें। Amen. आमीन।